رضا ہمارا ہے برم، کسی سے غم نہیں ہے غم، کرے گا ہمارا سر جو خم، نہیں کسی میں اتنا دم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اختر بھائی اللہ۔ میں دراصل شبیر دیوبندی صاحب، جی میں ہمارے اس لیے فون کیا تھا کہ استاذ کا ماں باپ کا ہاتھ پاؤں چومنا کیا ہے؟ سلسلے سے ٹھیک کہ ہے، ماں باپ یہ کا مسئلہ میں یہ جاننا چاہتا تھا، آپ کے موقف آپ کو کیا ہے؟ یہ ہاتھ پاؤں استاذوں کو، پیروں کو، بڑے بزرگوں کے جو چومے جاتے ہیں، اس کے متعلق آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ اپنا ظاہر کریں گے؟ جی اختر نظامی اس میں تفصیل ہے۔ جی تو تفصیل یوں ہے کہ دیکھیے ماں باپ کے ہاتھ چومنا صحیح ہے، ہاں بالکل صحیح ہے، یہ حدیث اور کے روشنی پہ ہے۔ ایک نقطہ آپ یاد رکھیے کہ نیک صالح اولاد، بلکہ آپ ایک اصول یاد رکھو کہ ہاتھ چومنا جائز ہے، پاؤں بھی چوم سکتے ہیں، پاؤں بھی چوم سکتے ہیں، لیکن محبت کے اندر، مودت کے اندر، دلدادگی کے اندر، لیکن ہاتھوں کو چومنا بالاتفاق صحیح ہے۔ لیکن اس میں ایک نقطہ یاد رکھیں کہ اگر جس کے ہاتھ چومے جا رہے ہیں اس کے اندر کبر اس سے پیدا ہوتا ہے، تکبر پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر بڑپنا آتا ہے، تو پھر ہاتھ اس کے چومنا جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ نہیں، بڑے بزرگوں کے تو ویسا تکبر آئے گا ہی نہیں، جیسے ایک نیچے آدمی، اگر ہم لوگ جیسا عام آدمی بڑے بزرگوں کے چومیں گے تو اس کی تکبر اور اس کی نیت کو تو اللہ جانے گا نا۔ اختر نظامی دیکھیے کیا کہتے ہیں کہ جو بڑے صالح لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے، ان کا ہاتھ تو چوم سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ ماں باپ کا تو ماں باپ کے اندر تو محبت ہے یار، ماں باپ ہمارے ماں باپ ہیں، بچے چوم سکتے ہیں، کوئی ہاں حرج نہیں۔ الحمدللہ یہی ہونی چاہیے، یہی حدیث میں ہے، یہ بھی ہے سنن ابو داؤد شریف کی حدیث میں، قدمنا المدینۃ فجعلنا فتبارد من رواحها فنقبل ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب صحابہ کرام مدینہ منورہ میں آئے اپنے سواری سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس اور پاؤں مبارک کو چومے، اس سے دلیل ہم لوگوں کو ملتی ہے۔ یہ حدیث امام بیہقی سنن کبریٰ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 102 پر بھی ذکر کیا ہے، اور ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 5225 میں بھی موجود ہے۔ امام بخاری بھی بہت سارے حدیث اس میں موجود ہے، الگ الگ کیے ہیں، ہے نا۔ تو اسی طرح سے ہاتھ پاؤں کو چومنے کے متعلق فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 174 پر لکھا ہے، ہاتھ پاؤں چومنے کا بحث میں گنگوہی صاحب نے ہاتھ پاؤں چومنے کو مباح لکھا ہے، یہ درست لکھا ہے، یہی ہم لوگوں کا موقف ہے۔ بوقت ملاقات علماء صلحاء کے ہاتھ پاؤں چومنا درست ہے کہا کر کے۔ اختر بھائی آپ تھوڑا سا بریک، آپ یہ جو چومتے ہیں اور آپ یہ جو حدیث آپ نے پڑھی ہے اور اس کو جو اپنے دل کے اندر بسایا ہے، یہ اعتقاداً ہے یا محبتاً ہے؟ یہ اعتقاداً بھی اور محبتاً دونوں طرح سے جائز ہوگا۔ صحیح۔ تو صحیح ہے، یاد رکھیے کہ اگر اگلے کے اندر تکبر آتا ہے، کبر آتا ہے، تو پھر جائز نہیں ہے۔ آپ ان کی نیت کو کیسے جانیں گے؟ جائز نہیں ہے کہاں آپ حوالہ دیجئے۔ آپ دیکھیے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا، بڑے لوگ، ان کی نہیں آپ منہ سے ٹپکتی ہے، چہرے سے ٹپکتی ہے، ان کی جسم لباس سے ٹپکتی ہے۔ نہیں، آپ اپنے طرف سے کوئی کلام مت کیجیے گا، وہ حوالہ سے بات کیجیے گا، ہے نا۔ بالکل حوالے سے میں دے رہا ہوں۔ نہیں بولیے حوالہ کہاں ہے؟ آپ کے گھر کی کتاب کا بھی پیش کیجیے۔ حضرت ہمارا گھر تو وسیع ہے، اور ہم ظرف والے ہیں، جی ہمارے یہاں راکھ زیادہ ہوتی ہے۔ تو اختر نظامی دیکھیے، آپ بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو میں دعوت دیتا ہوں، آپ ہمارے مسلک میں ہمشی المسلک منہج السنہ والجماعت کے اندر داخل ہو جائیے، آپ کو دنیا کے اندر بھی کامیابی اور آخرت کے اندر دامک اللہ ذلک فوق رؤوسنا واللہم احفظک من الفتن ما ظہر منها وما بطن وإلی غیر ذلک۔ جناب میں آپ کو دعوت دینے گیا تھا اور آپ الٹے کر رہے ہیں، آپ موقف بھی صحیح نہیں بتائے، کبھی کہہ رہے ہیں کہ تکبریت کے بنا پر اگر ہاتھ پاؤں چوما جائے تو نہیں چومنا چاہیے، ناجائز ہے نا۔ اس حدیث کے ذیل میں تفسیر لکھی ہوئی ہے، آپ نے پڑھا نہیں؟ نہیں، پورے تفسیر میرے نگاہوں کے سامنے ہی ہے، اور حدیث کے موافق جو لکھے ہوئے ہیں، جو بڑے بزرگوں کی، اس میں ہاتھ پاؤں چومنا مباح ہے، یہاں تک کہ فتاوی رشیدیہ کا بھی حوالہ میں آپ کو دیا، اس میں بھی مباح لکھے ہیں۔ اور سوانح قاسمی میں نانوتوی کے بارے میں لکھا ہے، سیدنا الامام کبیر اپنے والد بزرگوار کے قدم پر گر جاتے اور آگے کہتے ہیں والد کے قدموں سے سر اٹھاتے اور اس کے ہاتھ کو چومتے۔ دیکھیے پاؤں اور ہاتھ کو آپ کے اکابرین بھی چوما کرتے تھے، سمجھے؟ دیکھو اصل نظامی،
हल हो गया ना, आपने भी मान लिया, मैंने भी मान लिया। इसी तरह से सुनिए, इसी तरह से अल इमदादुल मुश्ताक में अशरफ अली थानवी साहब सफ़ा नंबर 187 पर लिखते हैं, उन्होंने जिस वक्त कदम बोस हुए हाजी इमदादुल्लाह के कदम चूमे, वो भी कदम चूमते थे, पांव चूमते थे बड़े बुजुर्गों के, ठीक। ये मसला हल हो गया ना भाई, लेकिन सुन लीजिए, जायज तो है ये, लेकिन एक शेख जवाहिरुल कुरान सफ़ा नंबर 61 पर उनके शेखुल कुरान कहते हैं इनको, ये देवबंदी हैं, बड़े अकाबिर में शुमार होते हैं, गुलामुल्लाह खान साहब, ये लिखते हैं, ये पाँव चूमना तो बरकिनार, हाथ चूमने को क्या फतवा लिखते हैं उसने, सुनिए, लिखे हैं, जिंदा पीर बड़े बुजुर्गों के बारे में, पीरों के हाथ को बोसा दे या उसके सामने दो जानू होकर बैठे, ये सब अफाल उस पीर की इबादत के होंगे और अल्लाह के नजदीक मौजबे लानत होंगे। जो आदमी किसी के हाथ चूमता है वो उसकी इबादत कर रहा है और सारे गैरुल्लाह की इबादत करने वाला मुशरिक है और लानती भी है बकौल देवबंदी अकीदे के मुताबिक। तो बताइए, इसके फतवे के मुताबिक ये तो बहुत मुशरिक हो जाएंगे ना। अशरफ अली थानवी, कासिम नानतवी, रशीद अहमद गंगोही, बड़े बड़े अकाबिरीन इसमें शामिल हैं। तो दरअसल अजान का टाइम भी अब करीबी है, तो मसला ये बताइए, ये तो इबादत बता रहे हैं, किसी के हाथ पांव को चूमना इबादत है, तो बताइए इबादत में शरीक करेंगे तो अल्लाह के बराबर मुशरिक हो जाएगा वो ना। और इसके फतवे से तमाम आपके अकाबिरीन भी मुशरिक हो जा रहे हैं। नहीं हज़रत, ये तो आपकी तावील है। नहीं, तावील नहीं, उसकी इबारत में पढ़ रहा हूँ जनाब, जवाहिरुल कुरान सफ़ा नंबर 61 में लिखे हुए। देखिए अख्तर निज़ामी, हाँ, उन्होंने इस वजह से लिखा है कि अगर उसके हाथ, तो बताइए इसके फतवे से अशरफ अली थानवी भी नहीं बचे, कासिम नानतवी भी नहीं बचे, रशीद अहमद गंगोही भी नहीं बचे, जितने भी बुजुर्ग हैं सब पर हमला कर दिया ये, और शेखुल कुरान है ये। अच्छा भाई सुनिए, हाँ, दरअसल इन्होंने जो बात लिखी है ना, उस बात के जेल में इन्होंने ये बात भी लिखी है, लेकिन दरअसल शायद आपकी नजरों से ना गुजरी हो। नहीं, पूरे पढ़ लिया हूँ, मेरे हाथ में भी इस वक्त मौजूद है। सुनिए, अगर शिर्क का अंदेशा हो और तो उस वक्त ये मुशरिक हो जाता है। नहीं, ये उसकी वजाहत नहीं की है, ये साफ लिखे हैं, हाथ पांव को चूमना इबादत में शुमार किए हैं, और इबादत गैरुल्लाह के लिए वो हराम और मुशरिक हो जाते हैं, शिर्क है ये कहा करके लिख रहे हैं। ये तो सही है, लेकिन सुनो, हर इंसान का अलग मौकफ है। उन्होंने किस रवैये से और किस नजरिए से कहा है वो हमने ना जानते हैं। नहीं, हाथ पांव को चूमना इबादत कैसे होगा बाबा, ये तो हदीस के खिलाफ भी है। सहाबा किराम चूमते थे और आपके बुजुर्ग भी चूमते थे, अशरफ अली थानवी साहब, बड़े बड़े आपके बुजुर्ग लिखते हैं। लेकिन ये शेखुल कुरान साहब, गुलाम अहमद खान साहब लिखते हैं, साफ लिखे हैं, हाथ पांव को चूमना इबादत हो जाएंगे वो। देखिए अख्तर भाई, हर इंसान का अलग मौकफ है, उन्होंने किस नजरिए से कहा, मौकफ की ये बात नहीं, ये तो शिर्क और कुफ्र और शिर्क की बात है ना। नहीं, शिर्क की बात तो है, बिल्कुल शिर्क है। अगर किसी अगले को इंदेशा हो कि भाई ये शिर्क के अंदर मुब्तला होगा तो शिर्क है। नहीं, ये हाथ पांव चूमना शिर्क कैसे होगा बाबा? क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ पांव को चूमते हैं? आपको कहा था कि हाथ पांव चूमना शिर्क नहीं है। अगर आप कह रहे नहीं है तो ये तो कह रहे हैं शिर्क है ना, मुशरिक हो जाएगा और मुझे लानत है। आप मुझे बताओ, कब्र के पास जाकर हाथ उठाकर दुआ करना ये दुरुस्त नहीं ना है? वो उसमें नहीं जाइए, सिर्फ बताइए, हाथ पांव को चूमना, ओनली वन, यही मौजू में रहिए, इधर मौजू नहीं। जो इसके फतवे से बहुत, इसी मौजू पर हूँ। दरअसल आपने वो नुक्ता वहां से उठाया, जो देखिए अख्तर भाई, जो आपने वहां से वो नुक्ता उठाया कि उन्होंने कहा, नुक्ता नहीं, मैं साफ तौर पर उनकी इबारत पढ़ा हूँ मैं। नहीं, मुकम्मल नहीं पढ़े हैं। और वो नहीं, देखिए सुनिए, लिखते हैं क्या, जिंदा पीर के हाथों को बोसा दे या उसके सामने दो जानू होकर बैठे, ये तो सब अफाल उस पीर की इबादत के होंगे। क्या करें? उस पीर की इबादत के होंगे और अल्लाह के नजदीक मौजबे लानत होंगे। तो बताइए, अल्लाह के नजदीक मौजबे लानत का फतवा देकर के किस पर लानत हो रहे हैं? ठीक है, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो नबी अलैहिस्सलाम के पास आए तो कैसे बैठे थे पता है? दो जानू के बल बैठे थे ना। तो इसके फतवे के मुताबिक वो भी मुशरिक और लानत, मौजबे लानत हो जा रहा है। शेखुल कुरान कहते हैं इसको। बकौल हो रहे हैं ना, आपके बकौल नहीं, मेरे बकौल नहीं, शेखुल कुरान गुलामुल्लाह खान के फतवे के मुताबिक हो जा रहे हैं ना। ना, उन्होंने किस नजरिए से कहा वो आप नहीं पढ़ पाए? नहीं, नजरिए पूरे मेरे सामने ही है, पूरे
आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ। मैं आपको पर्सनल भेज दे रहा हूँ। इसके मौक़िफ़ सरासर गलत हैं, इसके फतवे सरासर गलत हैं। मैं तो अशरफ अली थानवी को गलत नहीं कर रहा हूँ। कासिम नानवी का फतवा अपनी जगह दुरुस्त है, रशीद अहमद गंगोही के फतवा अपनी जगह दुरुस्त है। आप 2 मिनट मेरी बात भी सुनिए। देखिए, हम किसी को गलत नहीं कह सकते, ना ही किसी पर फतवा लगा सकते हैं। उन्होंने किस नजरिए से कहा या आप किस नजरिए से कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम, ठीक है। अब आप मुझे वो किताब सेंड कीजिए, मैं भी पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं आपको सेंड कर दे रहा हूँ। लेकिन ये फतवा आपके अकाबिरीन के भी खिलाफ है, वरना अगर इसको तस्लीम करेंगे तो आपके बहुत सारे अकाबिरीन काफिर हो जाएंगे। आप फिर जज बने फिर रहे हैं, ये सही नहीं ना है। देखिए, फैसला करना कीजिए, अभी भेजिए, फिर उसके बाद देखते हैं। ये मुतजाद फतवे लिखे हुए हैं, इस वजह से मैं आपसे दरियाफ्त किया कि इसके फतवे से बताइए कितने अकाबिरीन कुफ्र के घाट उतर जा रहे हैं। हत्ता कि आप बताए कि जिब्रील अमी, ये हदीस में मौजूद है, जिब्रील अमी 2 जानू होकर बैठते थे। इसके फतवे के मुताबिक वो भी फतवे के जद में आते हैं। ना, हर इंसान की अलग फितरत है। नहीं, ये फितरत अपने जाहिर नहीं, ये फतवे की किताब है जनाब। जवाहिरुल कुरान जो लिखे हैं, बिल तफसीर कुरान के भी तफसीर इसमें मौजूद है, और इसमें अपने ईमान और अकायद का इजहार किए हैं और फतवा भी सादिर किए हैं। आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए आप मुझे वो किताब। मैं व्हाट्सएप करूंगा, लेकिन ये गलत, आप जो गलत है उसको गलत मानना चाहिए। आप अशरफ अली साहब के थानवी के मौक़िफ़ पर आइए, कासिम नानवी के मौक़िफ़ पे आइए। मैं इसके मुतालिक आपको कुछ मैं उंगुश्तुनमाई नहीं करूंगा, लेकिन शेखुल कुरान गुलामुल्लाह खान साहब ये जो तहरीर किए हैं ये गलत है। अख्तर निजामी साहब, आपने ये कायदा सुना होगा कि अक्सर जो होता है वो अक्सर अल अक्सर लि हुक्मुल कुल, यानी अक्सर हुक्म कुल के मुताबिक होता है। अगर एक आदमी कोई फतवा देता है उसका एतबार थोड़ी होता है। अगर जमहूरी नहीं, इसमें एक उलमा की दस्तखत और तस्दीक नहीं है, कई उलमा दस्तखत और इसकी तौसीक किए हैं, समझे। किस की बताइए। ये शेखुल कुरान के गुलामुल्लाह खान के। और तो आप बताइए, तो इसके फतवे, इसको मौक़िफ़ को अगर दुरुस्त कहेंगे तो ये तो अशरफ अली थानवी के मौक़िफ़ के खिलाफ है, उसके सवाने कासमी के नानवी के साहब के बारे में भी खिलाफ है, रशीद अहमद गंगोही के भी खिलाफ है। तो आप इसको क्यों आप गलत को गलत कहा करें, समझे। मैं यही मशवरा है, जो हदीस और कुरान के खिलाफ हो और जो बहुत सारे आपके अकाबिर के खिलाफ हो, उसको छोड़ दें। नहीं, सुनिए, आप मुझे व्हाट्सएप नहीं तो मैं व्हाट्सएप भेज दे रहा हूँ आपको, ठीक है, भेज दे रहा हूँ अभी फौरन। पढ़ता हूँ और तहकीक करता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह हम जज की बनिस्बत फैसला करेंगे। लेकिन ठीक है इंशाल्लाह भेज दे रहा हूँ। ठीक है, अब आजान का टाइम भी इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। ठीक है।